Good evening, everybody. Bache, today we are going to start up with lens formula numericals. In the previous class, we had finished up ray diagrams. हमने बचे spherical lenses में convex and concave. We have finished the ray diagrams. So now we are going to start up with lens formula numericals. So bache, similar to mirror formula, we have a formula which helps us to calculate image distance, focal length, object distance, okay, in lenses. तो जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं लेंसेज में उसको हम कहेंगे लेंस फॉर्मूला. सो बच्चे बिफोर वी स्टार्ट अप आई विल जस्ट राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, देन वी विल बी डिस्कसिंग द कार्टेशियन साइंस, फिर 4 और 5 न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे इस पे बेस्ड. ऑलराइट, एंड देन आई विल बी शेयरिंग अ वर्कशीट जैसे मैंने आपके साथ मिरर फॉर्मूला की वर्कशीट शेयर की थी. सिमिलरली आई विल शेयर अ वर्कशीट रिलेटेड टू लेंस फॉर्मूला व्हिच यू कैन देन प्रैक्टिस फर्दर अहेड. ओके, so first of all, सबसे पहले when we write the lens formula हम कैसे लिखते हैं? Lens formula is 1 by f. Okay, lens formula is 1 by f is equal to 1 by v, 1 by v minus 1 by u. Lens formula is 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. बच्चे मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहां थोड़ा सा चेंज है. इन मिरर फॉर्मूला वी हैड 1 by v plus 1 by u. इन लेंस फॉर्मूला इट विल बिकम 1 by v minus 1 by u. रेस्ट बचे जो हम उसमें अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं उनका वही मीनिंग है. f is focal length, v is image distance, u is object distance. Okay, so 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. And if you want to calculate magnification, magnification would be equal to, magnification किसके equal होगा? Magnification would be equal to minus v, sorry not minus, it would be v by u. Magnification would be equal to v by u, which is further equal to height of image over height of object. ओके, तो बच्चे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. अब देखो मिरर फॉर्मूला में जब हम मैग्निफिकेशन निकालते थे मिरर्स की तो उसमें माइनस आता था यहाँ, बट इन लेंसेज इट विल बी सिंपली v by u which is further equal to height of image over height of object. That's it. ओके, तो चेंज क्या हुआ है कि माइनस v की जगह प्लस आ गया है एंड 1 by v minus 1 by u आ गया इंस्टेड ऑफ 1 by v plus 1 by u. That is it. तो हमें ये चीज याद रखनी है. This is the lens formula and magnification formula that we will be using in lenses. Now, the next question arises, how will we apply Cartesian signs? जैसे बच्चे हमने mirror formula में Cartesian signs लगाए थे. Okay, similarly you have to apply them in lens formula also. So बच्चे we will be discussing Cartesian signs and then we will be moving on to solving the problems. So Cartesian signs कैसे हम decide करेंगे? So बच्चे first of all we will be writing Cartesian signs for convex lenses. Okay, for convex lens. अगर आपके पास convex lens है तो उसके लिए आप Cartesian sign कैसे यूज करोगे? तो बच्चे यहां भी सिंपल वही फंडा है. Okay, let's say this is the lens. Okay, this is the optical you can say the plane of the lens जहां से रिफ्रैक्शन हो रही है. Let's say this is a convex lens. Okay, तो बच्चे if you are keeping your object, okay, let me just draw a principal axis also. Okay, this is our principal axis. बच्चे we always keep our object on the left side. हमारा object हमेशा left side पे होता है, right? Our object is always on the left side. Distances have to be measured from the optical center. तो बच्चे if you go towards left, अगर आप लेफ्ट साइड जाओगे साइन विल बी नेगेटिव. अगर आप राइट साइड जाओगे साइन विल बी पॉजिटिव. अगर आप ऊपर जाओगे दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट विल बी पॉजिटिव. अगर नीचे आओगे एज इन रियल इमेज हाइट इट विल बी नेगेटिव. ओके, सो बच्चे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कॉन्वेक्स लेंस में जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स है यू विल गेट अ रियल इमेज. एंड बच्चे रियल इमेज इज ऑन द अदर साइड. रियल इमेज आपकी दूसरी साइड बनती है. ऑलराइट,
तो अगर हम इन चीजों को समझ के कार्टेशियन साइंस लिखें, ओके, सो फॉर कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव। बच्चे शायद ये मैंने आपको पहले भी बोला होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप हमेशा नेगेटिव लोगे। ओके, सो u इज इक्वल टू नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव। व्हाट अबाउट व्हाट अबाउट इमेज डिस्टेंस? अब अगर रियल इमेज है बच्चे, तो रियल इमेज इज ऑन दी अदर साइड, ऑप्टिकल सेंटर से हम इस साइड जाएंगे। सो फॉर रियल इमेज इन लेंसेज v इज पॉजिटिव, दिस इज इन केस ऑफ रियल इमेज। अब बच्चे यहां अगर आप ध्यान से देखो, द केस हैज रिवर्स्ड। मिरर्स में रियल इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव लिया जाता है बिकॉज इट इज ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। बट हियर व्हाट हैज हैपेंड, यहां क्या हुआ है, आपकी जो रियल इमेज है वो लेंस की दूसरी साइड है। सो अकॉर्डिंगली व्हाट हैज हैपेंड, आपकी जो इमेज डिस्टेंस है रियल इमेज का वो पॉजिटिव लिया जाएगा। अब अगर बच्चे वर्चुअल इमेज है, if it is a virtual image, distance will be negative. If it is a virtual image which happens in convex lens, when object comes between focus and optical center, you will get a virtual image. आपको virtual image मिलेगी और उस केस में आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उस केस में आपका डिस्टेंस हो जाएगा नेगेटिव। ऑलराइट, देन व्हाट अबाउट फोकस? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। But when you talk about focal length of convex lens, it has a real focus and it is a converging lens. तो बच्चे in case of convex lens, focal length is always taken as positive. Focal length is always taken as positive. अब इसके पीछे reason क्या है? Convex lens is a converging lens and it will have a real focus जहां images दूसरी side पे form हो रही हैं. So focal length will be always taken as positive. Then height of object, बच्चे ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अपराइट, तो ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा ऊपर की साइड होगी, सो ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, व्हाट अबाउट हाइट ऑफ इमेज? बच्चे डिपेंडिंग ऑन द इमेज, इफ इट इज रियल इमेज हाइट ऑफ इमेज विल बी नेगेटिव। अगर रियल इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज विल बी नेगेटिव। पर अगर बच्चे वर्चुअल इमेज है, इफ इट इज अ वर्चुअल इमेज, height would be positive. If it is a virtual image, height would be positive. ठीक है बच्चे, आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है बच्चे। यहां आपको रे डायग्राम्स की जो ऑब्जर्वेशंस है ना, उस हिसाब से इसको करना है। ओके, ऑलराइट, चलो ऑलराइट, अब चलते हैं बच्चे कार्टेशियन साइन फॉर कॉनकेव लेंस। ओके, कॉनकेव लेंस में ये कैसे वेरी करेगा? ऑलराइट, फॉर कॉनकेव लेंस, कार्टेशियन साइंस फॉर कॉनकेव लेंस। ओके, ऑलराइट, Cartesian sign for concave lens. So बच्चे I will be just drawing this once again. Let's say this is the plane of the lens जहां से refraction होगी. This is my principal axis. Okay, this is my principal axis. Object is always on the left side. पर बच्चे in concave lens image is also always formed on the left side. क्योंकि इसमें virtual image है तो image भी हमेशा left side पे ही form होगी। ओके, दूसरी साइड तो इमेज जाएगी नहीं। तो बच्चे वी हैव टू कीप दिस इन माइंड, कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू यूज कार्टेशियन साइंस। तो बच्चे u इज ऑलवेज नेगेटिव, u तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे ही है। अब बच्चे इमेज डिस्टेंस, बिकॉज इट इज ऑलवेज फॉर्मिंग अ वर्चुअल इमेज, तो इट इज नेगेटिव क्योंकि बच्चे इट ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, इसमें रियल इमेज नहीं बनेगी। तो वर्चुअल इमेज बन रही है लेंस के उसी साइड पे जहां ऑब्जेक्ट है, सो डिस्टेंस वुड बी नेगेटिव। व्हाट अबाउट फोकस? ओके, व्हाट अबाउट फोकल लेंथ और f? बच्चे फोकल लेंथ और f विल बी आल्सो नेगेटिव। अब इसके पीछे हम क्या रीजन लिखेंगे? इट इज डाइवर्जिंग लेंस,
it does not have a real focus, it has a virtual focus. तो बच्चे it is a diverging lens, so we will be taking its value as negative. Okay, it is a diverging lens, so value of focal length will be negative. Next is बच्चे height of object. Height of object, it is always upright, so it would be taken as positive. And height of image, it would be also always positive in case of concave lens, क्योंकि बच्चे it always forms virtual image. ये हमेशा virtual image बनाता है, इसमें real image का कोई केस नहीं है. ठीक है, so these are the Cartesian signs for concave lens. Is it clear everybody? Concave lens तो बहुत ही easy है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, always virtual image है. Okay, all right, चलो. So बच्चे, now we'll be moving on to solving the questions. We'll be using the lens formula and these Cartesian signs to solve the numericals. Okay, all right बच्चे, I understand आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि हमने तो दो फोकस डिस्क्राइब किए थे, तो हम फोकस हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों रख रहे हैं. बच्चे आपको ये चीज समझनी है कि कॉन्वेक्स लेंस का नेचर क्या है. कॉन्वेक्स लेंस का नेचर है कन्वर्जिंग, इट विल नेवर डाइवर्ज लाइट रेज. तो बच्चे जो भी लाइट रे आएगी ऑब्जेक्ट से, इट इज गोइंग टू कन्वर्ज टुवर्ड्स द फोकस. ऑलराइट, सो अनीशा, व्हाट शुड बी फोकल लेंथ इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव? इट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि कन्वर्जिंग नेचर है. अब बच्चे अगर आप कॉन्केव लेंस की बात करते हो, तो कॉन्केव लेंस में तो हमेशा ही वर्चुअल फोकस है, क्योंकि ये हमेशा डाइवर्ज करेगा. तो बच्चे इट विल नेवर कन्वर्ज, तो फोकस तो ऑब्जेक्ट की साइड ही बनेगा. तो फोकस क्या आएगा इसका, फोकल लेंथ क्या आएगा? नेगेटिव. इज दिस क्लियर नाउ? ऑलराइट, ठीक है, चलो. Okay, so I'll be now picking up some questions. I'll share this worksheet also. It also has about 25 questions. तो कुछ questions बचे हम अभी करेंगे just for practice. All right, देखते हैं करके. उसके बाद आपको ये worksheet मैं share करूंगा. Then you will try to do this for your homework. All right, चलो. This is question number 1. Question number 1 is saying, an object 50 centimeter tall is placed on principal axis. Simran, just a moment, let me finish off the lecture now. In between, I cannot go to absolute and relative. Okay, just wait for a while. Once we finish off these questions, I'll be picking that up. An object which is 50 centimeter tall, it is placed on principal axis of a convex lens. बच्चे, it is a convex lens. Convex lens के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. Okay, तो बच्चे, if you look at this question, you have a convex lens. Object is 50 centimeter tall. So बच्चे, height of object, it is 50 centimeter. It would be written as plus, क्योंकि बच्चे ऑब्जेक्ट तो हमेशा अपराइट रखा जाता है. So height of object is 50 centimeter. Next, its 20 centimeter tall image is formed on the screen. बच्चे, on the screen, that means it is a real image. So height of image कितनी है? 20 centimeter. Okay, so it is minus 20 centimeter because it is a real image. क्योंकि बच्चे ये इमेज स्क्रीन पे फॉर्म हुई है, so it is a real image. तो हम माइनस लेंगे. Okay, and this screen is placed at a distance of 10 centimeter from the lens. Okay, screen का distance कितना है? 10 centimeter. तो बच्चे, that is image distance. Image distance is 10 centimeter. We will take it as positive because it is a real image. अब बच्चे, you have to calculate focal length. आपको calculate करना है focal length. पर बच्चे, there is a slight problem in the question. हमारे पास object distance भी नहीं है. तो बच्चे, आपको object distance भी calculate करना है, उसके बाद आप focal length calculate कर पाओगे.
तो बच्चे what I can clearly see here, I have height of object, height of image and v. I will use the magnification formula. मैं मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करके u निकालूंगा. ऑलराइट, तो बच्चे व्हेन आई प्लेस द वैल्यूज, ओके, लेट मी जस्ट राइट द फॉर्मूला. v by u, it is equal to height of image over height of object. This is my formula. I have to find u. मुझे u फाइंड करना है. ओके, सो बच्चे v की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय u, which is equal to height of image is -20 and height of object is 50. Okay, अब बच्चे if you solve this, अगर आप इसको solve करें तो it will become u is equal to 50 into 10 over 50 into 10 over 20. So this would be minus here. Just a moment. All right, 50 into 10 divided by 20. तो बच्चे आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आएगा देखो. If I am not wrong, u should be equal to -25 centimeter. -25 centimeter. This is the value of u, -25. Okay, just a moment. Image distance is 10, u is -25. Okay, चलो अब अच्छा लेट्स ट्राई टू गेट दी फोकल लेंथ. फोकल लेंथ निकालते हैं. u की वैल्यू -25 आ गई. फोकल लेंथ निकालते हैं. बच्चे फोकल लेंथ इज 1/f. फोकल लेंथ का फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v minus 1/u. तो बच्चे if I put the values, 1/f will be equal to 1/f is equal to v की वैल्यू कितनी है. v की वैल्यू बच्चे हमने निकाली है, जस्ट अ मोमेंट, v is 10 सेंटीमीटर. ऑल राइट, सो इट वुड बी 1/10. इट इज 1/10. ऑल राइट, माइनस, और u की वैल्यू भी माइनस में है बच्चे, सो इट वुड बी -1/25. ओके, तो बच्चे अगर आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो, if you solve this out now, तो LCM would be if I'm not wrong 50. okay, LCM आपका 50 आ गया, तो 50 ऊपर आ गया, और नीचे अगर हम इसको सॉल्व करें तो it would be 5 plus 2. Okay, 5 plus 2, that's equal to 50/7. तो बच्चे what would be the value? Okay, 7 7s are 49. 7 7s are 49. 1 बचा. Okay, तो it would be 7.1 centimeter approx. Okay, 7.1 centimeter. तो बच्चे this is my focal length. Positive value आई है. अब बच्चे check the answer according to ray diagram. This is a convex lens. Convex lens है तो focal length positive आना चाहिए. और बच्चे जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने -25 पे प्लेस किया है, सो दैट इज बियॉन्ड 2f. 2f के बियॉन्ड है, तो मतलब जो इमेज बनेगी बच्चे वो फोकस और 2f के बीच में बननी चाहिए. तो इमेज कहाँ बनी है 10 सेंटीमीटर पे, बिल्कुल सही. और इमेज रियल होगी और छोटी होगी -20. तो बच्चे अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम आपकी वैल्यूज जो आई हैं बिल्कुल सही आई हैं. आप रे डायग्राम के साथ भी चेक करके अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो. ओके, इज दिस क्लियर? ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको? हम रे डायग्राम्स क्यों यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग रे डायग्राम्स जस्ट टू चेक वेदर आवर आंसर्स और वैल्यूज आर करेक्ट और नॉट. सो अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम हमारे आंसर बिल्कुल सही आए. ओके, चलो नाउ बच्चे विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2. Okay, but this question is based on concave lens. All right, question number 2. A concave lens has focal length 20 centimeter. Okay, a concave lens has focal length
ऑफ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, ओके बच्चे दिस फोकल लेंथ वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव, नेगेटिव, व्हाई बिकॉज इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस, ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो बच्चे फोकल लेंथ वुड बी नेगेटिव, इट वुड बी -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, ओके उसके बाद है बच्चे आपका जो at what distance from the lens a 5 centimeter tall object should be placed so that it forms an image at 15 centimeter from the lens. तो बच्चे ये जो 15 centimeter दिया है from the lens, this is our image distance. तो बच्चे it always forms a virtual image, so you will take it as -15 centimeter. Okay, and बच्चे height of object is 5 centimeter. Height of object 5 centimeter. This is my object placed in front of the lens. But you have to find object distance and height of image or size of the image बोला है ना, okay you can find magnification or height of image as you wish. तो height of image भी निकाल लेंगे, magnification भी निकाल लेंगे, okay हम ये तीनों वैल्यूज निकालेंगे इस क्वेश्चन में। तो बच्चे मुझे u के लिए सॉल्व करना है, सो बच्चे 1/f इज इक्वल टू 1/v minus 1/u। तो बच्चे इफ आई टेक दिस u हियर इट विल बिकम पॉजिटिव एंड f हियर, तो बच्चे इसको रीअरेंज कर लो, सो 1/u रीअरेंज करने का ये बेनिफिट होता है बच्चे कि आपसे गलती नहीं होगी बाद में, सो 1/v minus 1/f, ओके तो रीअरेंजमेंट इज डन, लेट्स पुट दी वैल्यूज। तो बच्चे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे 1/u, ओके 1/u it is equal to, what is the value of v, -15, so it is -1/15, okay -1/15, और यहां बचे माइनस है, ओके तो दिस विल बी माइनस, ओके ब्रैकेट में डालिए -1/20, ओके दिस इज द वैल्यूज विच वी हैव पुट इन द फॉर्मूला। अब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम वुड बी 60 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो u इज इक्वल टू, ओके 60 ऊपर आ जाएगा एलसीएम और नीचे आएगा माइनस, ओके माइनस प्लस, सो इट वुड बी -4 plus 3, so this means u is equal to -60 सेंटीमीटर। u की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई -60 सेंटीमीटर। तो बच्चे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में आया है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, ओके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में आया है, एब्सोल्युटली राइट। अब हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है v और u है, तो बच्चे हाइट ऑफ इमेज कैसे निकाल सकते हैं, ओके हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू v ओवर u। बच्चे मैं सीधा ही फॉर्मूला लिख रहा हूं, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू v ओवर u। बच्चे लेट्स पुट दी वैल्यूज, वैल्यूज डालते हैं, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, ओके बच्चे v की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है हमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 5 सेंटीमीटर, v की वैल्यू आपको दी है, v की वैल्यू इज -15, ऑलराइट एंड u की वैल्यू भी दी है आपको, u की वैल्यू है -60, ओके सो आई विल पुट इट दिस वे -60, ऑलराइट तो बच्चे ये कैंसिल हो जाएगा, सो इट वुड बी हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, it is equal to 1/4, okay so बच्चे it is it would be 5/4, that's equal to 1.25 सेंटीमीटर। तो बच्चे वर्चुअल इमेज बननी है तो हाइट जो आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, सो हाइट ऑफ इमेज इज 1.25
सेंटीमीटर्स। ठीक है बच्चे। अब बच्चे मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हो आप। मैग्निफिकेशन इज इजी टू कैलकुलेट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता है, हाइट ऑफ इमेज आपको पता है, मैग्निफिकेशन निकालिए। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज over height of object. So this simply means height of image is 1.25 and height of object is 5. So bacha, that is 1/4 if I am not wrong. That's equal to 0.25. bacha, magnification should be positive. Magnification positive value आएगी. Why magnification will be positive? Because it's a virtual image and we know in concave lenses, we always get a very small image. Image can never be greater than object. तो इसलिए यहाँ मैग्निफिकेशन 1 से कम है, सो उस हिसाब से ये आंसर करेक्ट है। ऑल राइट, चलो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 पिक करेंगे अब। ऑल राइट, ओके, क्वेश्चन नंबर 3। All right, अच्छा, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। यहां कॉन्वेक्स लेंस आ गया है अगेन। ऑल राइट, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम लेंस so that it forms an image at 60 centimeter on other side of the lens. Also find magnification formed by the lens in this case. तो बच्चे ये जो मुझे देख के पता लग रहा है कि फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और इमेज मुझे 60 पे चाहिए, तो दैट मींस आई शुड प्लेस ऑब्जेक्ट आल्सो एट 60, क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्ट को 60 पे रखूंगा तो इमेज भी 60 पे बन जाएगी। दिस इज द केस वेयर योर ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f पे रखना है, पर हमें बच्चे ये मैथमेटिकली सॉल्व करके लेंस फॉर्मूला से दिखाना पड़ेगा। ओके, ये तो हमने रे डायग्राम से जज कर लिया कि 60 पे ही आएगा आंसर। लेट्स सी इफ दिस इज करेक्ट और नॉट, क्या वही आंसर आता है कि नहीं। ओके, तो बच्चे फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, इट वुड बी प्लस बिकॉज इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। देन इमेज डिस्टेंस दिया है, इमेज डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड, so it is a real image, positive value. Then you have to find object distance, ये नहीं दिया, and you have to find magnification. Okay, आपको magnification find करनी है। तो बच्चे u find करेंगे सबसे पहले। So बच्चे 1/f is equal to 1/v minus 1/u। u को उधर ले जाते हैं, f को इधर ले आते हैं, इसको रीअरेंज कर लो। 1/u is equal to 1/v minus 1/f। ओके, ये मेरी वैल्यूज आ गई, सॉरी ये मेरा फॉर्मूला रीअरेंज होके बन गया 1/f। ऑलराइट, अब अच्छा वैल्यूज पुट करिए, आंसर तो -60 आएगा। करके देखते हैं, सॉल्व करो, लेट्स सी वेदर यू गेट द आंसर और नॉट। 1/u, 1/v is 1/60, focal length is minus, oh sorry it is in plus, so 1/30, और LCM इसका क्या होगा, LCM would be 60। okay, तो बच्चे this means u is equal to LCM is 60 over 1 minus 2। okay, so this means u is equal to -60 सेंटीमीटर। देखो रे डायग्राम के अकॉर्डिंग बच्चे हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है, 2f पे ही रखना है -60। तो बच्चे मैग्निफिकेशन कितनी होगी, मैग्निफिकेशन वुड बी -1, मैग्निफिकेशन शुड बी -1, क्योंकि अ रियल इमेज ऑफ सेम साइज इज फॉर्म्ड। ओके, करके देखते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u इन केस ऑफ लेंसेज। तो बच्चे दिस means m is equal to v की वैल्यू कितनी है 60 सेंटीमीटर और u की वैल्यू है बच्चे माइनस में, तो इट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -1। ऑलराइट, -1 वैल्यू आ गई हमारी।
तो बच्चे रे डायग्राम के अकॉर्डिंग ये आंसर बिल्कुल सही आ रहा है हमारा। ओके चलो डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ओके रे डायग्राम फाइंड करना है, बनाना है इसमें। ओके ऑलराइट, लेट्स पिक अप क्वेश्चन नंबर, okay let's pick up question number 4 only. I'll just go sequence wise. बच्चे इसमें कुछ क्वेश्चन पावर पे भी बेस्ड हैं। पावर ऑफ लेंस अभी हमने किया नहीं है, वी हैव टू डू पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको पावर ऑफ लेंस के दिखेंगे बीच में। डोंट वरी अबाउट दैट, दैट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू पिक। ओके ऑलराइट चलो क्वेश्चन नंबर 4। तो अगेन बच्चे यू हैव गॉट अ कॉनकेव लेंस हियर। इस क्वेश्चन में आप सॉल्व करोगे और बाद में रे डायग्राम बनाओगे। तो बच्चे इन दिस क्वेश्चन यू हैव अ ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट जो है 4 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, you have an object whose height is 4 centimeter. All right, height of object is 4 centimeter and this object is placed 15 centimeter away from a concave lens. तो बच्चे object distance is -15. Object distance is -15 centimeter. All right, अब बच्चे इसका जो फोकल लेंथ दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो f इज इक्वल टू -10। ऑलराइट, यू हैव टू फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। बच्चे नेचर तो हमें पता है वर्चुअल ही बनेगा, पोजीशन और साइज फाइंड करना है तो v फाइंड करेंगे। ओके, साइज में आप मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हो। ऑलराइट, तो v फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, विल यूज द लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू, ओके v फाइंड करना है। I'll just rearrange this. So 1/v is equal to 1/f plus 1/u. मैंने पहले रीअरेंज कर लिया बच्चे। अब इसको सॉल्व करेंगे। फोकल लेंथ दिया हुआ है -10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 15 सेंटीमीटर। सो 1/v इट इज इक्वल टू, फोकल लेंथ इज -10 प्लस दिया इधर माइनस, u की वैल्यू बचे 15 है, -15। ओके जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट पुट इट एज प्लस ओनली, -15। ऑलराइट, अब बच्चे इसके अंदर जो एलसीएम निकलेगा इट वुड बी 30। ओके, एलसीएम वुड बी 30, एलसीएम वुड बी 30। ऑलराइट, एलसीएम की वैल्यू बचे 30 आ गई। हम इसे सॉल्व करेंगे, -3 और ये प्लस माइनस माइनस तो 2। तो बच्चे v इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर, -5 -6 सेंटीमीटर। बच्चे v की वैल्यू क्या आ रही है, ओके -6 सेंटीमीटर आ गई। अब अच्छा आप मैग्निफिकेशन भी फाइंड कर सकते हो, m इज इक्वल टू v/u, तो इट वुड बी -v/-u, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इमेज का जो साइज आएगा वो बच्चे छोटा आएगा, इमेज साइज वुड बी स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट साइज। तो यहाँ मैग्निफिकेशन छोटी आनी चाहिए। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u। तो बच्चे आप वैल्यूज पुट करो, v की वैल्यू माइनस में है, u की वैल्यू भी माइनस में है, सो इट वुड बी -6/15, -6/-15। तो बच्चे m की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके ऑलराइट, सो इट वुड बी 0.4, 0.4। तो बच्चे मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड वैल्यू इज लेस देन 1, सो दिस इज शोइंग दैट अ स्मॉल इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है,
तो बच्चे इस तरीके से आप क्या कर पाओगे, लेंस फॉर्मूला को यूज करके विल बी सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ऑलराइट, अब बच्चे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है which is based on converging or diverging ability of the lens. Okay, rest of the numericals बच्चे I'll be sharing with you the worksheet, उसमें कुछ numericals power of the lens पे भी based हैं, तो मैं आपको power of the lens जो है concept और theory वो पढ़ाने जा रहा हूं अब next। Power of the lens, what do we understand by this term? What is power of lens? Okay, this is denoted by P, power of lens। तो बच्चे पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, इट रेफर्स टू कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ द लेंस। ओके, इट रेफर्स टू कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ द लेंस। It refers to converging or diverging ability of the lens. Okay, power of lens क्या है? Power of lens refers to converging or diverging ability of the lens. अब बच्चे इसके लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a very simple formula। पावर ऑफ लेंस कैसे निकालते हैं? पावर ऑफ लेंस is equal to 1 over focal length। पावर ऑफ लेंस कैसे निकालेंगे? 1 over focal length in मीटर। बच्चे जिस लेंस की भी आपने पावर निकालनी है उसको रेसिप्रोकल में लिख के, या आप क्या करोगे, आप उसको 1 से डिवाइड करोगे, सॉरी नॉट 1 से, 1 को फोकल लेंथ इन मीटर से डिवाइड करोगे। सो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर। अब बच्चे इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट इज डायोप्टर, SI यूनिट। बच्चे द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, SI यूनिट इज डायोप्टर। SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। ओके, एंड बच्चे डायोप्टर को D से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल D। SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। ओके, अब बच्चे आपको कई बार डायोप्टर जो यूनिट है उसको डिफाइन करने के लिए भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो आपको बोला जाएगा डिफाइन 1 डायोप्टर, डिफाइन 1 डायोप्टर। जैसे बच्चे हमने क्लास 9th में भी यूनिट्स डिफाइन किए थे, सिमिलरली अभी हमने क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में भी डिफाइन किए हैं। तो आपसे बच्चे यूनिट्स डिफाइन करना क्या है, एक्सपेक्टेड है, आपको डिफाइन करना आना चाहिए। व्हाट इज 1 डायोप्टर? बच्चे 1 डायोप्टर रेफर्स टू पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। बच्चे 1 डायोप्टर किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू पावर ऑफ अ लेंस विच हैज फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। ओके, इट is power of a lens, it is power of a lens equivalent, okay, it is power of a lens which has focal length equivalent, which has focal length equivalent to 1 मीटर। ऑलराइट, कोई भी ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर के इक्वल है, तो बच्चे उसकी पावर कितनी होगी? उसकी पावर होगी 1 डायोप्टर। अगर बच्चे किसी भी लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर किसके इक्वल होगी? पावर विल बी इक्वल टू 1 डायोप्टर। ऑलराइट, अब बच्चे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लेंस पावर जो है वो प्लस माइनस में आएगी। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट फॉर कॉनकेव लेंस, सॉरी फॉर कॉन्वेक्स लेंस
power is positive, whereas for concave lens, power is negative. Okay, for convex lens power is positive, whereas for concave lens power is negative. अब बच्चे इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है. कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो पावर भी पॉजिटिव आएगी. पर बच्चे अगर कॉनकेव लेंस है तो उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो इसलिए उसकी पावर भी नेगेटिव आएगी. क्या बच्चे ये पॉइंट क्लियर है सबको? व्हाई वी आर टेकिंग पावर एज पॉजिटिव और नेगेटिव? ऑलराइट, ठीक है. चलो, तो बच्चे ये हो गया. उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. समटाइम्स व्हाट हैपेंस, यू विल हैव कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस. कई बार आपसे कुछ क्वेश्चन में बोला जाएगा कि लेंसेस को कंबाइन किया हुआ है तो उसकी पावर निकालनी है. ओके, इक्विवेलेंट पावर या ओके ये लिख लेते हैं. द पावर, ओके, द इक्विवेलेंट पावर. अगर बच्चे बहुत सारे लेंसेस एक साथ जोड़ के रखे हुए हैं आपने तो उनके जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी इक्विवेलेंट पावर कैसे निकलती है? द इक्विवेलेंट पावर ऑफ combination the equivalent power of combination of lenses is simply the algebraic sum. आपको क्या करना है बच्चे, जो भी आपको पावर दी है लेंसेस की अलग अलग जो कॉम्बिनेशन में लगे हैं उनको सिंपल टोटल कर देना है. जैसे इक्विवेलेंट पावर ऑफ अ लेंस कैसे निकलेगी? इट वुड बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन. जितने मर्जी लगे हो आपने उनको क्या कर देना है, सिंपली टोटल कर देना है. और बच्चे जो इक्विवेलेंट पावर बनेगी कॉम्बिनेशन की उस हिसाब से उसका नेचर होगा. अगर बच्चे पावर पॉजिटिव है लेंस इज कन्वर्जिंग, अगर पावर नेगेटिव है लेंस इज डाइवर्जिंग. कॉम्बिनेशन में आप इस तरीके से पावर निकालोगे, उनको टोटल कर देना. ठीक है ना? ऑलराइट, चलो कैसे निकालेंगे पावर. ठीक है, आई विल गिव यू अ सिंपल क्वेश्चन. एक क्वेश्चन दूंगा सिंपल सा, ठीक है, इसको करके देखेंगे. पावर पे बेस्ड होगा. ओके, कैलकुलेट power of the lens. Calculate power of, okay, पहला पार्ट देता हूं आपको. You have diverging lens with focal length. Diverging lens with focal length 25 सेंटीमीटर. बी है converging lens with focal length 30 सेंटीमीटर. ठीक है, आपको बच्चे पावर निकालनी है. डाइवर्जिंग लेंस दिया है और एक कन्वर्जिंग लेंस दिया है. अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द लेंस यू विल डिसाइड द फोकल लेंथ. पर बच्चे यूनिट कन्वर्ट करना है, ये सेंटीमीटर में आपको मीटर में निकालना है तब डायोप्टर बनेगा. सो आंसर कैसे निकलेगा? ए पार्ट देखो, आपको फोकल लेंथ दी हुई है, डाइवर्जिंग लेंस है, सो फोकल लेंथ वुड बी -25 सेंटीमीटर. ओके, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट्स इक्वल टू -0.25.
मीटर। तो बच्चे पावर इज इक्वल टू 1/f, so this simply means it is 100/25, that's equal to, ओके माइनस में रहेगा बच्चे क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो -4d। देखो कितना इजी है, आपको बस फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना है और फॉर्मूला यूज करना है, बस ये सही डिटरमिन करना है कि f की वैल्यू प्लस आएगी या माइनस अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द लेंस। B is converging lens with focal length 30 सेंटीमीटर। ओके, कन्वर्जिंग का मतलब है बच्चे इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। तो बच्चे फोकल लेंथ इज 30/100 मीटर, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, तो पावर इज इक्वल टू 1/f। आप ये वैल्यूज पुट करो तो इट वुड बी 100/3, तो आंसर विल बी 100/30, sorry, so it would be, power would be equal to 3.33d diopter, तो पॉजिटिव में आएगा आंसर। चलो, इज इट क्लियर एवरीबॉडी, समझ आ गया? ऑल राइट, चलो अब एक क्वेश्चन आपको कॉम्बिनेशन पे देने जा रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। रेस्ट आपको क्या हो सकता है कि आपको पावर दी है उससे फोकल लेंथ निकालना है, तो अगर बच्चे पावर दी है और फोकल लेंथ निकालना है तो फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 1/p, तो उसको रिवर्स कर देना है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको पावर दी है और फोकल लेंथ निकालना है तो f इज इक्वल टू 1/p कर दो। ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन आपको दूंगा कॉम्बिनेशन पे, ताकि पावर वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाए। ओके, 3 lenses of power 1.5d minus 3.5d and minus 0.25d are placed in close contact. Okay, calculate equivalent power, and determine nature of combination। बच्चे जो इक्विवेलेंट पावर आ गई उसी के हिसाब से कॉम्बिनेशन का नेचर बनेगा, वेदर इट विल बी डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, क्योंकि लेंसेज को आपने कंबाइन करके लगा दिया है। तो बच्चे इसको कैसे करेंगे, यू हैव टू सिंपली ऐड देम अप। ओके, इक्विवेलेंट पावर विल बी इक्वल टू P1 P2 P3, तो इक्विवेलेंट पावर आएगी कॉम्बिनेशन की, P1 इज 1.5d प्लस, ये बच्चे माइनस में आ गया, सो माइनस 3.5d माइनस 0.25d। ओके, डी नहीं लिखने की जरूरत, सिर्फ साइन का ध्यान रखिए, क्योंकि माइनस में 2 पावर्स थी, तो 1.5 माइनस 3.5 माइनस 0.25, तो बच्चे इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा आंसर। ओके, माइनस 2.25d। So बच्चे इक्विवेलेंट पावर विल बी इक्वल टू माइनस 2.25d। तो बच्चे व्हाट वुड बी नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, क्या नेचर होगा इसका, कन्वर्जिंग के डाइवर्जिंग, इट वुड बी डाइवर्जिंग, क्योंकि बच्चे पावर नेगेटिव में आई है, तो कॉम्बिनेशन का जो बनेगा, कॉम्बिनेशन का जो यू कैन से नेचर बनेगा, इट वुड बी डाइवर्जिंग। ओके, this combination would act as diverging lens। Okay, this combination acts as diverging lens। Okay, ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह वर्क करेगा। ऑलराइट, तो बच्चे ये आपके क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन पावर ऑफ द लेंस। तो बच्चे इन द वर्कशीट दैट आई विल बी शेयरिंग देयर विल बी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पावर ऑफ द लेंस आल्सो।
और बच्चे इस वर्कशीट के अंदर आई डिफेक्ट्स के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। आई डिफेक्ट्स, बच्चे प्लीज डोंट स्टार्ट डूइंग आई डिफेक्ट क्वेश्चंस। ये देखो, दे स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21। वैसे आप ये वाला कर सकते हो, पावर के साथ ही रिलेट करना है। जस्ट अ मोमेंट। ओके, चलो करके देखना। अगर आप कर पाओगे पावर वाले क्वेश्चंस तो कर लेना, अदरवाइज कोई डिफेक्ट वाला अगर क्वेश्चन होगा बच्चे तो दैट यू विल हैव टू लीव, क्योंकि अभी हमने ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में डिफेक्ट्स ऑफ आई नहीं किया है। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहां डिफेक्ट ऑफ आई है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। बच्चे देयर आर अबाउट 25 क्वेश्चंस इन दिस, where you will have questions based from power of the lens, focal length, lens formula, सारे questions हैं इसके अंदर। तो I'll be sharing this worksheet with you. Please do practice this. Okay. Okay. बच्चे I'll be sharing the worksheet on your WhatsApp group also. अभी मैंने बच्चे PDF फाइल्स ऐप पे डालना अभी शुरू नहीं किया है। It will take some time gradually. I don't know whether you have logged in or not. अगर आपने लॉग इन किया है तो उसमें साइंस का मटेरियल तो नहीं होगा आई थिंक, अभी मैथ्स का ही होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग दैट मच टाइम टू वर्क ऑन इट राइट नाउ। ठीक है, बट आई विल बी ग्रेजुअली पुटिंग सम मटेरियल देयर आल्सो। पर बच्चे जो भी मटेरियल हम यहाँ क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, चलो जस्ट अ मोमेंट बच्चे।